નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દીમાં પાઠ 2નો અભ્યાસ કરીશું. ગયા લેક્ચરમાં આપણે જોયું હતું બુઢી કાકી પાઠ શરૂ કર્યો હતો અને અડધે સુધી આપણે પૂર્ણ કર્યું હતું. બુઢી કાકી પાઠનો પ્રકાર વાર્તા છે, કહાની છે. તો એમાં થાય છે એવું, બુઢી કાકી એકલા હોય છે અને તેમના ભત્રીજા બુદ્ધિરામ હોય છે. તેમના નામે બુઢી કાકી, વૃદ્ધ કાકી બધી જ સંપત્તિ એમના નામે કરે છે. ત્યારે બુદ્ધિરામ બહુ મોટી મોટી એવી વાતો કરતો હોય છે અને એમને સાચવવાની પણ વાત કરતો હોય છે. પણ બને છે એવું કે સંપત્તિ નામે થઈ ગયા પછી બુદ્ધિરામ અને તેમના પત્ની તેમને સમયસર જમવાનું પણ પહોંચાડતા નથી. એક દિવસ એમના ઘરે કોઈ પ્રસંગ હોય છે અને ત્યારે મહેમાનો આવેલા હોય છે, પણ કાકીને જમવાની ખૂબ જ ઈચ્છા થઈ હોય છે, ભૂખી હોય છે બહુ. તેથી તેઓ બહાર આવે છે. ત્યારે મહેમાન વચ્ચે જોઈ બુદ્ધિરામના પત્ની તેમને હાથ પકડી ઢસડીને એક રૂમમાં પૂરી દે છે. અને વૃદ્ધ કાકીને એવો વિચાર આવે છે કે મેં ઉતાવળ કરી દીધી છે એટલા માટે આવું થયું હોય છે. તેઓ અંદર જઈ બેભાન પડી જાય છે, ઘા કરે છે. એટલે આગળ એમની દીકરી છે, તેમને વૃદ્ધ કાકી પ્રત્યે લાગણી હોય છે અને તેઓ તેમને અત્યંત પ્રેમ કરતા હોય છે. ત્યાં સુધી આપણે ભણેલા. ચાલો આપણે આગળ શરૂઆત કરીએ. લાડલી કો કાકી સે અત્યંત પ્રેમ થા. લાડલીને કાકી પ્રત્યે ખૂબ જ પ્રેમ હતો. વહ झुझला रही थी कि वे लोग काकी को बहुत सी पुड़िया क्यों नहीं दे देते. તે વિચારી રહી હતી કે તેઓ કાકીને ઘણી બધી પૂરી કેમ આપી નથી શકતા. ક્યાં મહેમાન સબકે સબ ખા જાયગે? શું મહેમાન બધે બધું ખાઈ જવાના છે? और यदि काकी ने मेहमानों के पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा? અને જો કાકીએ મહેમાનોની પહેલાં જમી લીધું હોય તો એમાં એનું શું થઈ જવાનું હતું? વહ કાકી કે પાસ જાકર ઉन्हें ધૈર્ય દેના ચાહતી थी. તે કાકી પાસે જવા માગતી હતી, પરંતુ માં કે ડર સે ન જાતી थी. પરંતુ તેવી લાડલી તેમના મમ્મીના ડરથી દાદી વૃદ્ધ કાકી પાસે જઈ શકતી ન હતી. उसने अपने हिस्से की पुड़िया बिल्कुल न खाई थी. તેણે તેમના હિસ્સાની પુરિયા પણ ખાધી ન હતી. ઉન પુડીઓ કો કાકી કે પાસ લે જાના ચાહતી હતી. તેમના હિસ્સામાં આવેલી પૂરીઓ પણ તે કાકીને દેવા માગતી હતી. ઉસકા હૃદય અધીર હો રહા થા. બુઢી કાકી મેરી બાત સુનતે હી ઉઠ જાએગી. એમનું હૃદય ઉપર થઈ રહ્યું હતું. વૃદ્ધ કાકી આ એમની વાત સાંભળીને બેઠી થઈ જશે. પુડિયા દેખકર કેસી પ્રસન્ન હોગી. કે પુરિયા જોઈને કેવી આનંદમાં આવી જશે. મુझे ખૂબ પ્યાર કરેગી અને મને ખૂબ જ પ્રેમ કરશે. રાત કે 11 બજ ગયે થે. રાતના 11 વાગ્યા. રૂપા આંગણ में पड़ी सो रही थी. લાડલી કી આંખો में નીંદ ન थी. રૂપા બુદ્ધિરામની પત્ની છે, તે આંગણામાં સૂઈ રહી હતી અને લાડલીને ઊંઘ આવતી ન હતી. કાકી કો પુડિયા ખિલાને કી ખુશી ઉસે સોને ન દેતી હતી. તે કાકીને ખવડાવવા માગતી હતી પૂરીઓ, અને એ વાત એને સુવા દેતી ન હતી. જબ વિશ્વાસ હો ગયા કે અમ્મા સો રહી. જ્યારે એમને વિશ્વાસ આવ્યો કે એમની મમ્મી સૂઈ ગઈ છે, તો વહ ચુપકે છે ઉઠી ઓર બુઢી કાકી કી કોઠરી કી ઓર ચલી. એને વિશ્વાસ થઈ ગયો કે એના મમ્મી સૂઈ ગયા છે, ત્યારે તે સંતાઈને ગુપ્ત રીતે કાકીના ઓરડા તરફ જાય છે. બુઢી કાકી को केवल इतना याद था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटते और फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाई લઈ જાતા હે. બુઢી કાકીને ખાલી એટલું જ યાદ હતું કે તેમનો કોઈએ હાથ પકડ્યો હતો અને ઢસડી હતી, અને એને લાગ્યું હતું કે કોઈ પર્વત ઉપર ફેંકી રહ્યું હોય એવું એને લાગી રહ્યું હતું. उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराते, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर दे पटका, वे मूर्छित हो गई. જ્યારે તેમના પગ પથ્થરોને વારંવાર મારતા હતા, ત્યારે કોઈએ તેમને પર્વત પર ફેંકી દીધા હતા. ત્યારે તેઓ શું થઈ ગયા હતા? બેહોશ થઈ ગયા હતા. જબ વે
सचेत हुए तो किसी की जरा भी आहट न मिलती थी। જ્યારે તે સજાગ થઈ ગई ત્યારે કોઈનું નિશાન ન હતું। उन्होंने समझा कि सब लोग खा पी कर सो गए। તે સમજી ગઈ કે બધા જ લોકો ખાઈ पी લીધું હશે। यह विचार कर काकी निराशामय संतोष के साथ लेट गई। आ विचारीने वृद्ध काकी निराश थईने संतोष पामीने सूई जाय छे। लगानी से गला भर भर आता था। गळું અભરાથી ભરેલું હતું, પરંતુ મહેમાનો કે ડર से રોતી નથી, પરંતુ મહેમાનોના ડરથી તે રોતી પણ ન હતી। सहसा उनके कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पुड़िया लाई हूँ। अचानक तेना कान में एक अवाज आव्यो कि काकी जागो, हूँ पूरी लईने आवी छूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। काकीए लाडली नहीं बोली ने सांभળી અને ओळखी लीधी छे। दोनों हाथों से लाकड़ी को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने बन्ने हाथ वडे स्पर्श करी अने तेना खोळामां बेसाड़े छे। लाडली ने पूरिया निकाल कर दी। लाडलीए पूरीओ काढीने आपी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? काकीए वृद्ध काकीए एमने पूछ्યું कि तारी माताए आपी छे? लाडली ने कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से की है। ना ना, आ मारा हिस्सानी मारा माटे हजी ते छे। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। काकीने जबरदस्त भूख लागी होय छे એટલે તે પૂરી ખાવા મળે છે, શરૂ કરી દે છે। 5 મિનિટમાં તો એ ખાલી કરી નાખે છે। લાડલીને પૂછા, કાકી પેટ ભર ગયા? લાડલીએ પૂછ્યું, કાકી તમારું પેટ ભરાઈ ગયું છે? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर गर्मी पैदा कर देती है, उसी तरह उन थोड़ी पुड़िया ने काकी की श्रद्धा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। જેવી રીતના ઠંડીના સમયમાં ગરમી ઉત્પન્ન થાય છે, એવી જ રીતના કાકી પૂરીઓ ખાઈને પોતાના કહેવાય ને કે વધુ શરીરમાં વધુ શક્તિશાળી બનાવે છે। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। नहीं दीकरी बोली कि नहीं, जईने तारी मम्मी पासेथी थोड़ीक वधारे मांगीने लाव। लाडली ने कहा, अम्मा सो गई है, जाऊंगी तो मारेगी। एना मम्मी तो सूई गई छे, जो हूँ ए जागी जशे अने हूँ जाईश तो ए मने मारशे। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें कुछ खुरचर गिरे थे, उन्हें निकालकर वे खा गई। बार बार होठ चाटती थी, चट खारे भरती थी। काकी फरीथी एमनो वाटको जे होय छे ते पकड़े छे अने तेमां केटलाक टुकड़ाओ पड्या होय छे, तेओ तेमने काढीने पण खाई जाय छे अने वारंवार होठ चाटती होय छे अने वारंवार चाटिया करे छे। हृदय महसूस रहा था कि और पुरिया कैसे पाऊँ। एना दिल में लाग्યું કે હજી હું વધારે પૂરીઓ કેવી રીતે મેળવી શકું। કાકી का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रवाह में वह गया। काकीનું अधीर मन इच्छाना प्रवाह में पड़્યું। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। साचा खोटानो विचार एमने जातो रह्यो। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती नहीं, ते इच्छा ने थोड़ा समय माटे रोकी न सकी। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर खाना खाया। अने एमने कहे छे कि मारो हाथ पकड़ीने लई जा मने जे स्थल पर मेहमानोए
जम्या हता ते स्थल पर। लाडली उनका अभिप्राय समझ न सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और ले जाकर जूठे पतलों के पास बैठा दिया। लाडली से ए काकी શું કહેવા માગે છે તે સમજી ન શકી અને કાકીનો હાથ પકડીને તે બધા એઠવાડ હોય છે ત્યાં લઈ જાય છે અને ત્યાં બેસાડે છે। काकी पतलों से पूड़िया के टुकड़े चून चून कर खाने लगी। एठवाड़मांथी काकी पूरीओना टुकड़ाने वीणी वीणीने जमवा लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, दही कितलू स्वादिष्ट है। कचौड़िया कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल, कचोरी કેટલી સ્વાદિષ્ટ અને નરમ છે, કડક છે। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ। काकी बुद्धिशाળી હોવાને કારણે હું એટલું જાણતી હતી કે હું તે કામ કરું છું જે મારે કદી ન કરવું જોઈએ। जो मुझे कदापि न करना चाहिए, जे मारे काम कभी करવું न જોઈએ। मैं दूसरों की झूठी पतल चाट रही हूँ, परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है। बीजाना एठवाड़मांथी खावू ए वृद्ध काकीनी तृष्णा ए बीमारीनो छेल्लो समय हतो, वृद्ध अवस्थानो ए छेल्लो समय हतो। जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है, बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी संवेदनता थी। જ્યારે બધી ઈચ્છાઓ અને એક કેન્દ્રમાં આવવા માંડે છે, આ કેન્દ્ર વૃદ્ધ કાકી તેનું સ્વાદિષ્ટ માને છે। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। તે જ સમયે रूपाने जागवानुं थाय छे, जागी जाय छे। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। एमने खबर पड़ी कि लाडली मारी पासे नहीं। चौकी चारपाई के इधर उधर देखने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। चारपाई एटले खाटलो अथवा पलंग कहीए तेनी वात करी छे। एनी आजूबाजू जुए छे कि नीचे तो नहीं पड़ी ने। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती है कि लाडली जूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी थी। एणे जोयुं तारे एठा वासणों हता एनी पासे ऊभी हती ते जोवे छे, और बूढ़ी काकी पतलों पर से पुड़िया के टुकड़े उठा उठा कर खा रही थी। अने तेओ जोवे छे तो वृद्ध काकी एठा वासणमांथी पुड़िया वीणी वीणीने खाई रही हती। रूपा का हृदय सन्न हो गया। रूपाનું હૃદય ડૂબી ગયેલું હતું। यह वह दृश्य था जिसे देखकर देखने वालों के हृदय कांप उठते हैं। તે એક દ્રશ્ય એવું હતું કે જેણે એને જોનારા હોય એનું હૃદય કાંપમાં ઉઠે છે। ऐसा प्रतीत होना मानो जमीन रुक गई है। એ શું એવું આપણને લાગે કે જાણે કે જમીન બંધ થઈ ગઈ છે। आसमान चक्कर खा रहा था, आकाश फरतु होय, संसार पर कोई विपत्ति आने वाली है, दुनिया पर क्या आपत्ति आवा मांगती होय छे, आवी होय। रूपा को क्रोध न आया, शौक के सम्मुख क्रोध कहा। रूपा ने गुस्सो तो न आव्यो, ते सामे एने गुस्सानी नजरे जोती हती। करुणा और भय से उसकी आंखें भराई। अभी करुणा जोई तेमनी आंखों में आंसू आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है? आ अधर्मना पापना भागीदार कौन छे? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। के आकाश समूह हाथ जोड़ीने कहे छे कि परमात्मा मारा बाळको पर दया करो अने आ अधर्मनो दंड मने नहीं दो, नकर मारू सत्यानाश थाय। रूपा की ओर
स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रत्यय प्रत्यक्ष रूप में कभी न दिख पड़े थे। રૂપાની સ્વાર્થ અને અન્યાય ક્યારે આવી રીતે સીધો જોવા મળ્યો ન હતો। વહ સોચને લગી, હાય કિતની નિર્દય હું। એને વિચાર આવવા મળ્યો કે પોતે તેઓ એટલી બધી નિર્દય હૃદયની છે। जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपया वार्षिक आय हो रही है, જેની સંપત્તિથી મને वार्षिक 200 रुपया कमाऊँ छूँ। उसकी यह दुर्गति, तेनी आवी दशा और मेरे कारण अने ई मारा कारणे। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी गलती हुई है, मुझे क्षमा करना। माराथी बहु मोटी एवी भूल थई गई छे, मने माफ़ करशो। रूपा ने दिया जलाया। रूपाए दीवो प्रगटाव्यो, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में सारा भोजन सजा कर लिए हुए बूढ़ी काकी की ओर चली। अने ते रूमना दरवाजा खोल्या अने थाली में तमाम खोराकनी सजावट करी अने वृद्ध काकी तरफ आवे छे। उसने कंठार वृद्ध स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। के काकी ऊभा थाओ अने जमी लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना। माराथी आ बहुत मोटी भूल थई गई है, एमनु तमे खोटू न मानता। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वे मेरा अपराध क्षमा कर दे। के परमात्मा ने प्रार्थना करो कि ते मने तेओ माफ़ करी दे। भोले भोले बच्चों की भ्रांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है। बाळकोनी जेम मिठाईओ मळ्या पछी ते दरेक गाळो के जे दीधुं होय ते भूली जाए छे। बूढ़ी काकी सब भूला कर बैठी हुई खाना खा रही थी। वृद्ध काकी बधुं ज भूली गई अने खावा माटे बेसी गई छे। उनके एक एक रोई से सच्ची संधी चाय निकल रही थी। તેમના રુદનમાંથી સાચી શુભેચ્છાઓ વહેતી થઈ હતી। और रूपा बैठी इस स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निग्न थी। अने रूपा ते स्वर्गीय दृश्यनी मजा माणवा मळी हती। शब्दार्थ जोई लईए। पुनरागमन एटले वापस आना। आंतरनाद दुख भरी चीख। सब्जबाग झूठे सपने। शुद्धावर्धक भूख को बढ़ाने वाली। रक्षागार एटले सुरक्षित स्थान। दिक करना, हैरान करना। उद्विग्न, चिंतित। सच्चाई, शुभकामना, अच्छी इतना। सेतु अथवा पुल। ग्रास तो कोर। मसुंबे, कल्पना, इच्छाए। रसस्वादन, स्वाद लेना अथवा आनंद लेना। मुहावरा, सब बाग दिखाना, अपना काम साधने के लिए बड़ी बड़ी आशाएं दिखाना। हवे स्वाध्याय जोईए। स्वाध्याय में पहलो प्रश्न है एमसीक्यू। एमां पहलू, बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम क्या था? बूढ़ी काकी के भतीजे का नाम बुद्धिराम था। रूपा किसकी पत्नी थी? रूपा बुद्धिराम की पत्नी थी। बीजानो जवाब ड अने पहलानो जवाब ब आवशे। स्वाध्याय में आगळ जोईए। त्रीजो प्रश्न, किसने अपने हिस्से की पूरिया काकी के लिए बचा कर रखी थी? आनो जवाब लाडली आवशे। बूढ़ी काकी को पतलों पर से झूठी पूरी के टुकड़े खाता देखकर कौन सन्न रह गया? आमा जवाब में आवशे रूपा। बूढ़ी प्रश्न 2, एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। बूढ़ी काकी कैसे रोती थी? एनो जवाब बोलूँ छूँ। बूढ़ी काकी गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। बीजो प्रश्न जोईए। बुद्धिराम के घर किस उत्सव में पुड़िया बन रही थी? बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम के तिलक का उत्सव था, इसलिए बुद्धिराम के घर पर पुड़िया बन रही थी।
ત્રીજો પ્રશ્ન જોઈએ, બુढ़ी काकी को कहाँ पर बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। આનો જવાબ બોલું છું, બુढ़ी काकी को कहाड़ के पास बैठा देखकर रूपा क्रोधित हो गई। જોઈએ આગળ ચોથો પ્રશ્ન, किस खुशी में लाडली को नींद आ रही थी। काकी, एनो जवाब बोलूँ छूँ, काकी को पुड़िया देने की खुशी में लाडली को नींद नहीं आ रही थी। आगळनो प्रश्न જોઈએ પાંચમો, उत्सव के दिन बूढ़ी काकी किसके डर से नहीं रो रही थी। उत्सव के दिन अपशुकन के डर से काकी नहीं रो रही थी। आगळ छठो प्रश्न જોઈએ, बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र कौन सी इंद्रिय थी। बुढ़ापे में बूढ़ी काकी की समस्त इच्छाओं का केंद्र स्वादेंद्रिय थी। हवे प्रश्न 3, 4 ने 5 आ होमवर्क में रहेशे। तो विद्यार्थी मित्रों, स्वाध्याय तमारे होमवर्क में लखवानो रहेशे। नवा लेक्चर में नवा टॉपिक साथे फरी मळीशुं। आज माटे एटलुं। आभार।